Ready? Everybody. So, myself, Professor Sai Kiran Salgare, Director of Salgare Physics Classes. Okay, we have started the online lectures on GAN Online Education. Okay, application. So, today we are going to start the new chapter from the physics part first, that is work, energy, power and collision. This is an very important chapter for the NEET and JEE purpose. Are you getting my point? What I said? So, see here, this is important. Why I am saying that this is important? Because for the NEET, for the NEET, they asked 2 to 3 questions. How much? They asked 2 to 3 questions. After that, for JEE, they asked 1 to 2 questions. Okay. So, see here, what I said, work, energy, power and collision, which is a very important chapter. Okay, from today onwards, we'll carry on all the chapters, yes, with our NEET regular syllabus. Are you getting my point, what I said? So, work, energy, power and collision, very important chapter from the physics part first. So, see here, this is the syllabus for the work, energy, power. What I said, listen carefully. This is the syllabus for work, energy, power and collision. See here, what is meant by the work? Work क्या होता है? देखिए, this is an object. ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. इसको अगर मैं यहां से कुछ फोर्स देने के बाद, see here what I said, यहां से कुछ फोर्स देने के बाद ये आपकी उसकी पोजीशन चेंज कर लेता है. यस, ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी पोजीशन चेंज करता है. सी हियर, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फोर्स देने के बाद यहां तक जाता है, राइट? इट चेंजेस इट्स पोजीशन, मींस सम वर्क इज डन हियर. व्हाट आई सेड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, दैट इज द वर्क. क्या बोलेंगे हम इसको? वर्क बोलेंगे. सो दिस इज द वर्क. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है वर्क के लिए. क्या करना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है. फोर्स लगाने के बाद ये पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है. सो दैट्स व्हाई विल कंसीडर दिस इज द वर्क बाय फोर्स. ये जो वर्क है कौन से? तो फोर्स की वजह से आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्क. ओके, सो देखो वर्क में क्या है. वर्क का जो पोर्शन है अपना, ये 2 3 4, यस, ये जो 4 पॉइंट है ये वर्क से रिलेटेड है. अलग अलग शब्द, ये जो 4 पॉइंट है वो क्या है? वर्क से रिलेटेड है. आफ्टर दैट दीज 3 points which are related, sorry, these 4 points which are related to energy, and these points which are related to power, and last one is the collision. Power बहुत छोटा पोर्शन है. आफ्टर दैट कोलिजन इज देयर. कोलिजन में थोड़ा सा थोड़ी नहीं, बहुत इंफॉर्मेशन है. इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ओके, ये सब चीजें आती है हमारी. ओके, एनर्जी तो मालूम है आपको. सो वर्क के हिसाब में देखो, वर्क के जो पॉइंट है उस वर्क में हर तरफ देखो, हर पॉइंट में देखो, फोर्स है, फोर्स है, फोर्स है, राइट? ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है. और ये जो चीजें है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो JEE, those who are preparing for JEE, this point is too important for the JEE. They ask a question. Okay, एक क्वेश्चन वो हर साल पूछते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई सेड? तो एक क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर, सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है. कहां से आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है. हर साल में मैक्सिमम टाइम तो पूछा है उन्होंने. Okay, so all these things which are related to work, energy, power and collision. First, write down this syllabus. First is that introduction of work. After that, yes, work done by constant force, work done by variable force. एक constant force की वजह से होता है, दूसरा variable force की वजह से क्या होता है देखना पड़ेगा आपको. Conservative and non-conservative force, kinetic energy. After that, work energy theorem, then potential energy,
and last one from the energy portion, that is the law of conservation of energy. After that, types of equilibrium, that is also related to energy maximum. यहाँ पे potential energy का use होता है. And last but one, power and collision. So all these things which are related to our chapter. First write down that. ये लिखने के बाद हम आगे का पोर्शन देखेंगे. ओके आगे का पोर्शन मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. अभी हमें देखने का है, पहले लिख लो इससे फास्ट. नाउ लेट्स सी आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. कौन सा है अपना फर्स्ट पॉइंट? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. See here, I will consider here a block which is placed on a rigid body or rigid support. ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक के ऊपर, सॉरी एक ब्लॉक जो है वो एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर रखा है, राइट. सो इफ आई प्रोवाइड द फोर्स, अगर हम यहां से इसको फोर्स दे रहे हैं जस्ट लाइक दैट, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, ऐसा फोर्स दे रहे हैं. यस ऐसा फोर्स दे रहे हैं, मतलब ये फोर्स देने के बाद क्या हो रहा है, ये यहां तक जाएगा, राइट. सो ये यहां तक जाएगा. ओके यहां से यहां तक जाएगा, मतलब इसकी जो पोजीशन है ये ब्लॉक की, वो यहां से यहां तक जाएगी, राइट. मतलब ये पोजीशन चेंज करेगा. पोजीशन चेंज करेगा मतलब कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. ये क्या कवर कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. फॉर एग्जांपल अभी हम ये जो पॉइंट है ये ब्लॉक समझेंगे. ये ब्लॉक के ऊपर अगर आप ऐसा फोर्स लगाते हो, इफ यू प्रोवाइड द फोर्स लाइक दैट, और इफ यू प्रोवाइड द फोर्स लाइक दैट आल्सो, एंड इफ यू प्रोवाइड फोर्स लाइक दैट आल्सो, ये तीन जे कंडिशन आहेत, ह्या तीन कंडिशन, या तिन्ही कंडिशन मध्ये तुम्ही फोर्स अप्लाय करू शकता. आणि त्यावेळेस आपण काय असते वर्क डन बघू. त्यासाठी बघा लक्ष द्या, वर्क डन म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय द वर्क डन. सी हियर, वर्क डन इज नथिंग बट वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी. वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. क्यों है देखेंगे. सी हियर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. लिसन केयरफुली व्हाट आई सेड. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वर्क डन. क्या बोलेंगे हम इसको? वर्क डन बोलेंगे. वेयर, ये देखो फोर्स और ये डायरेक्शन यहाँ पे हो गई इसकी, राइट. अगर ये सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे कुछ तो एंगल बनेगा, राइट. यहाँ पे कुछ तो एंगल यानी 90 डिग्री एंगल बनेगा. देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वर्क डन. उसको क्या बोलेंगे हम? वर्क डन बोलेंगे. सो see here, W is equals to Fs cos theta. Fs cos theta. See here, अगर आपको ये चैप्टर आना है, ये अगर चैप्टर आपको आना पड़ेगा, सॉरी ये थोड़ा सा हिंदी में ही होगा, अगर ये चैप्टर आपको सही तरीके से आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? What you have to do? Yes, your vector chapter and integration बहुत परफेक्ट होनी चाहिए आपके, तभी आपको ये चैप्टर आएगा. व्हाट आई सेड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, यस, वर्क डन. उसको क्या बोलेंगे हम? वर्क डन बोलेंगे. दैट इज Fs cos थीटा. क्या है ये? Fs cos थीटा. See here, what I said, listen carefully all of you. Then theta is the angle between force and displacement. Theta is what? Angle between force and displacement. थीटा क्या है? एंगल है. कहां कहां का एंगल है ये? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल है. ओके, सो लेट्स सी, विल कंसीडर द SI यूनिट. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन? क्या आएगा? वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी. यस, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी.
मराठीमध्ये कार्य करण्याच्या क्षमतेला ऊर्जा असे म्हणतात, बरोबर. सो एसआय युनिट इज व्हॉट? जूल, that is J, which is represented by J. CGS unit is what? arg. CGS unit क्या है हमारे पास? arg है, ओके. दैट इज कन्वर्जन अगर आप देखते हो इसका तो क्या होगा, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 arg. 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या है? 10 रेज टू पावर 7 arg. दैट इज द वर्क डन. वर्क डन का ये कन्वर्जन है एसआई यूनिट का और सीजीएस यूनिट का. यस, एसआई एंड सीजीएस यूनिट के बीच में का कन्वर्जन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसके डायमेंशंस क्या आएंगे फिर? लाइक अ यस m1 l2 t-2, लाइक एनर्जी, कौन सी भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, वर्क डन इज लाइक सेम. वर्क डन के जो डायमेंशन है वो जो है वो सेम रहेंगे. किसके किसके हिस्से से? किससे किससे सेम रहेंगे वो? यस, विच इज सेम एज लाइक अ एनर्जी. एनर्जी के जैसे सेम रहेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Ready? So now we'll discuss some important cases for the work done by constant force. Okay, listen carefully all of you. See here, that is too important to us because these cases are necessary to find the answer of problems. Okay, let's see. See here, case first. केस फर्स्ट. ओके, देखो बच्चों यहां पे ये जो फोर्स है, सीयर, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस साइड पे लगाने के बाद, लिसन केयरफुली, यहां पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो दिस पार्टिकल और दिस बॉक्स विल मूव फ्रॉम दैट पोजीशन टू दैट पोजीशन, दैट पोजीशन टू that position, yes, which has the displacement s. जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? s होता है. मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये तो दो चीज है. यस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस टू आर द फिजिकल क्वांटिटीज. ये कौन से है? फिजिकल क्वांटिटीज है और विच हैज द सेम डायरेक्शन. दोनों की भी डायरेक्शन कैसी है? ये सेम डायरेक्शन है. सो इन दैट कंडीशन विल कंसिडर केस नंबर फर्स्ट, F and S आर पैरेलल. कैसे है? F and S पैरेलल है तो थीटा जो है वो आएगा 0 डिग्री. थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा. इफ द पैरेलल, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? पैरेलल है. इफ थीटा इज 0 देन W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला? FS cos थीटा. FS cos थीटा. Understand, where theta is angle between force and displacement. थीटा क्या है बच्चों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का एंगल है. Then W is equals to, listen carefully all of you, W is equals to Fs cos 0. W is equals to Fs cos 0. Then F into S, because the value of cos 0 is 1. Cos 0 की वैल्यू कितनी आएंगी बच्चों? 1 आएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया आपको? दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए. W is equals to Fs. This is the case 1. If force and displacement are in the same direction, it means that is in the parallel direction. कैसे हो? Parallel में है. Are you understanding? Then next one is the case number 2. केस नंबर क्या है? ये 2 है. तो यहां पे देखो बच्चों, आई विल कंसिडर अ रिजिड सपोर्ट बॉक्स इज देयर एंड माय फोर्स इज लाइक दैट. मेरा जो फोर्स है दूसरी केस में का, दैट इज लाइक दैट. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप ऐसा फोर्स लगाओगे, ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये डिस्प्लेस होगा क्या? नहीं होगा डिस्प्लेस. अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, यस, ये अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ तो इसमें कुछ वर्क हुई है क्या? नहीं हुई है.
So that's why we'll consider here no work is done if the force and displacement are in the perpendicular sense. अगर perpendicular sense में है वो तो वहां पे कुछ भी वर्क नहीं होगा. If F and S are perpendicular then theta is equals to 90 degree. वहां पे थीटा कितना आएगा बच्चों? 90 डिग्री थीटा आएगा. और 90 डिग्री थीटा रहने के बाद see here all of you, yes, W is equals to Fs cos 90. cos 90 की वैल्यू जो है बच्चों आती है 0. सो देर विल बी नो वर्क इज डन. यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है. ये पहली केस में मैक्सिमम वर्क हो जाएगा, राइट? इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वर्क. ओके, देन in this second condition in the second condition no work is done because value of cos 90 is 0. cos 90 की वैल्यू जो है वो कितनी आती है? 0 आती है. So that's why we'll consider here the no work is done. W is equals to 0. Now last case, तीसरी जो केस है यहाँ पे, तीसरी केस देखो बच्चों. थर्ड केस इज दैट केस 3. See here, आप स्प्रिंग में वगैरह देख सकते हो. आई विल कंसिडर हियर द बॉक्स. पहले जो बॉक्स का एग्जांपल है वही देता हूं मैं आपको. अगर आप फोर्स इस तरह से देते हो, मतलब आप देखो स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर अगर आप फोर्स इस तरह से दे रहे हो, इस साइड में दे रहे हो, तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जो है उस साइड से बढ़ता है, अपोजिट साइड से बढ़ता है. मतलब अगर आप फोर्स इस साइड में दे रहे हो, ये रिजिड सपोर्ट है, राइट? इस साइड पे फोर्स दे रहे हो, तो इस साइड पे फोर्स देने के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब होता है बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द एंटी पैरेलल सेंस. कौन से सेंस में है ये? यस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल. कैसे है वो? एंटी पैरेलल है. अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल में है तो उस तरह पे वहां पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो एंगल है वो हो जाएगा 180 हो जाएगा. एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 हो जाएगा. और cos 180 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है -1. cos 180 की वैल्यू क्या रहती है? -1. तो देखो W is equals to Fs cos 180 that is equals to F into S into -1 that is minus Fs. यहाँ पे जो वर्क होता है वो वर्क जो है वो बच्चों वो होगा वर्क निगेटिव वर्क डन इज हेयर. यहाँ पे वर्क डन कितना होगा बच्चों? निगेटिव वर्क डन इज हेयर. वहां पे जो है निगेटिव, यहाँ पे नो और यहाँ पे मैक्सिमम एंड दैट इज पॉजिटिव वर्क इज हेयर. तो देखो ये हो गया आपका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे आपका हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस 3 केसेस आर देयर. अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री देते हैं तो भी आपको करना आएगा, मतलब करना बहुत इजी होगा, क्योंकि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2. अगर 30 देते हैं तो क्या होगा? √3/2. cos 30 की वैल्यू 60 देते हैं तो यस 1/2. इस तरह से आप cos के वैल्यूज रख के आप निकाल सकते हो. ये 3 केसेस हमने ले चुके हैं. अगर कोई अलग होगी तो अगर आपको लगता है तो मुझे पूछो, व्हाट्सएप करो. अगर प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम भी लेने वाले हैं इसके. तो ये कंडीशन होने के बाद एक प्रॉब्लम देख लो आप. राइट डाउन फास्ट. नाउ सी द प्रॉब्लम. क्या है देखो, a block of mass m equals to 2 kg is pulled by a force of 40 न्यूटन. फोर्स कितना है यहाँ पे? एक ब्लॉक है, यस, एक ब्लॉक है, उसको पुल किया है. कहां पे? ऊपर की तरफ से, वर्टिकली अपवर्ड, राइट? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg का ब्लॉक है, जस्ट लाइक दैट. सी हियर, दिस इज द ब्लॉक ऑफ 2 kg which is pulled upward. उसको क्या किया है? अपवर्ड पुल किया है, ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ खींचा है, राइट? दैट हैज द फोर्स ऑफ हाउ मच?
40 न्यूटन। कितना है फोर्स उसका? 40 न्यूटन। इतने फोर्स से उसको पुल किया है ऊपर की तरफ से, जिसका मास कितना है बच्चों? विच हैज द मास 2 kg। जिसका मास कितना है बच्चों? 2 kg है। तो ऊपर की तरफ उसको पुल किया है, जहां की फोर्स कितना है? 40 न्यूटन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। थ्रू अ हाइट 2 मीटर। कहां तक खींचा है उसको? जिसकी हाइट कितनी है? पुल करने के बाद कितनी हुई उसकी हाइट? 2 मीटर इतनी हाइट हुई है यहाँ पे पुल करने के बाद। h इक्वल्स टू 2 मीटर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। which has also and same direction, जिसको क्या है बच्चों? सेम डायरेक्शन है उसकी, अपवर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। देन फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो फोर्स निकालने का है। एंड वेट की वजह से, वेट इज नथिंग बट द फोर्स। वेट क्या है? फोर्स है, राइट? सो वेट की वजह से कितना फोर्स वर्क डन हो रहा है, और उस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है वो हमें निकालने का है। ओके। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है एंड फोर्स इज आल्सो अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो कॉस की वैल्यू कितनी आई? कॉस थीटा की वैल्यू दैट इज 1, बिकॉज एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 0। सो इन द फर्स्ट कंडीशन, इफ विल फाइंड द फर्स्ट कंडीशन, यस देखो बच्चों यहाँ पे W is equals to F into S only, because both the direction of displacement and force is same. Okay, then W is equals to F into S. What is F? F कितना है? 40 है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2 है। यानी कितना हो गया ये? 80 जूल, सॉरी 80 जूल इज द वर्क डन। 80 जूल क्या है बच्चों? वर्क डन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत इजी है ये अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, राइट डाउन फास्ट। फास्ट लिखो, साथ में ही लिखो या बाद में लिख सकते हो। W इज इक्वल टू 80 जूल वर्क डन। अब दूसरी कंडीशन, वेट कहां पे रहेगा? कौन से ही बॉडी का जो वेट है दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ वेट होता है। एंड वेट इज नथिंग बट फोर्स, जिसको हम वेट बोलते हैं, दैट इज mg। क्या रहेगा? mg। वेट जो रहता है वो क्या रहता है बच्चों? यस, वेट इज नथिंग बट द फोर्स एंड विच इज ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज mg। कितना है वो? mg इतना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और वेट है mg विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज, यस, विच इज टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो है डाउनवर्ड, सॉरी वेट जो है वो क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच आर एंटी पैरेलल डायरेक्शन, वो दोनों जो है कैसे है? एंटी पैरेलल में है। इसका मतलब होता है बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, then W is equals to minus F into S। यस, F मतलब क्या है? यहाँ पे वेट है, राइट? वेट कितना है? mg into S with minus sign। so W is equals to, मास कितना है बच्चों? 2 kg। मास है 2 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है यहाँ पे, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट इज 2 मीटर। इसका मतलब होता है ये 2 into 2 4 into 10 दैट इज माइनस 40 जूल। माइनस 40 जूल इज द वर्क डन। जो केस 3 देखे थे हमने, पहली केस ये है और लास्ट वाली केस जो है वो ये है। तो ये हो गया आपका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So in this way we'll find the work done by the constant force. Yes,
Today we will stop here. Next part we'll see tomorrow. Write down. इसके ऊपर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेने वाले हैं. आज से ये पूरा कंटिन्यू रेगुलर हो जाएगा. ओके.